The undercover investigation has been carried out in good faith and in public interest. The organization and the journalist conducting the investigation are in no way associated or aligned with or against any person, political party, organization, entity, institution, religion, or religious group named in the video or otherwise. Any reference, direct or indirect, made either to any person, political party, organization, entity, institution, religion, or religious group, or to any association, proximity, enmity, rivalry, hatred for, towards, between any person, political party, organization, entity, institution, religion, or religious group is purely for the purpose of the investigation. It should not be insinuated from the contents of the investigation that the organization or the journalist conducting the investigation has done so either to target or at the behest of any person, political party, organization, entity, institution, religion, or religious group. References in the video made by the persons other than the journalist conducting the investigation to any person, political party, organization, entity, institution, religion, or religious group are the sole prerogative and personal opinion of the respective persons. The organization and the journalist conducting the investigation do not intend to outrage, insult, wound, or hurt any religion or the religious sentiments, beliefs, or feelings of any persons or class or community while conducting the investigation. Viewers are advised that the videos have been transcribed to the best of our ability. Transcribing is a painstaking process and error-prone work. In case of any error, the video along with the audio should be referred to. Errors, if any, in transcribing are purely bona fide and unintentional. It should be remembered that subtitles are only an aid to the viewing process. Any misrepresentation or deviation of the editorial from the original documentary in Hindi as published on the official website of Cobra Post, or error due to translation into vernacular in news stickers, news bands, or any other visual element is the sole responsibility of the media channel carrying the story, whether in part or whole. जिंदगी जीने का नया तरीका शुरू करो। पेटीएम करो। अपनी तहकीकात का दायरा बढ़ाते हुए पत्रकार पुष्प शर्मा ने रुख किया पेटीएम ऐप की तरफ। पेटीएम ऐप को आज कौन नहीं जानता। देश भर में इसके करोड़ों सब्सक्राइबर हैं और हर दिन इनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार इसके सब्सक्राइबर की संख्या 20 करोड़ से भी ज्यादा है। नोटबंदी के दौरान इस ऐप के सब्सक्राइबर की संख्या काफी तेजी से बढ़ी थी। आपको बता दें कि पेटीएम ऐप केवल मनी ट्रांसफर ऐप नहीं है, ये एक बड़ा बाजार और बैंक बनता जा रहा है। तरह तरह के ऐप जुड़ते जा रहे हैं, जिससे पेटीएम का दायरा बढ़ता जा रहा है। पत्रकार पुष्प शर्मा पहुंचे पेटीएम के नोएडा ऑफिस, जहां उनकी मुलाकात कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट सुधांशु गुप्ता से हुई। बातचीत की शुरुआत में ही सुधांशु ने अपना पॉलिटिकल इंटरेस्ट साफ कर दिया था। साथ ही पत्रकार पुष्प शर्मा को दिखाया कि कैसे वो अपने ऐप के जरिए प्रमोशन करते हैं। So, Mr. Gupta, now it's up to you. You give me the options where we can club in, and tomorrow we'll sit. What type of content do you have exactly? Srimad Bhagavad Gita, shloks of Lord Krishna. That's it. I'll forward the jingles which we are already running in FMs of Karnataka, and some videos which we are already having. So, ठीक है, तो मैं आपको and obviously going to be transparent. Yes. Obviously, religion is a sensitive topic overall. But Srimad Bhagavad Gita and Lord Krishna is having universal appeal. By the way, मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। हाँ. तो in case मतलब you should obviously know our political affiliation. Yeah. ये हमारी पेटीएम ऐप है। Right. आज के दिन मिस्टर मोदी इज राइट हियर। उनकी एक बुक आई है अभी, एक्स्ट्रा एग्जाम वॉरियर्स। Right. We are actually promoting this book, and it's right displayed on the home page. Okay. Right. Right. So okay. So we have the e-books which we can promote there. Right. Do you have like text, like obviously there are books as well? Yes. That's mainly a satire kind of thing. So tomorrow let's sit over and have enough time so that we can cover multiple issues. ठीक है। तो मेरे को नहीं करना, ठीक है। What I will have to do is I will have to really understand how do you want to propagate and what is your content. वो आप लोग कर लेंगे, मेरा तो बजट है, मुझे तो वो लेना है पैसा। Very nice, very nice. So इस पे नहीं अलग से कनेक्ट करते। सुधांशु ने हमारी रिक्वायरमेंट को भांपते हुए जल्द ही कई ऑप्शन हमें सुझाए।
बकौल सुधांशु, पेटीएम ऐप पे क्विज चलाया जा सकता है, जिससे हमारे एजेंडे को आसानी से जगह मिल सकती है, वो भी बिना किसी रुकावट के। समिति जो है वो while you're talking, I'm getting some ideas as well. या तो हम क्या करते हैं ना, हम पेटीएम ऐप पे हाँ क्विज चलाते हैं। राइट, हम भगवद गीता के अराउंड क्विज चलाते हैं वही हिंदुत्व क्वेश्चन होगा, किसने रचा, क्या हुआ, कैसे हुआ, बस और ये क्विज चला देते हैं लोग। मतलब आप विश्वास नहीं करोगे, डेली कुछ तो मतलब कम से कम 25,000 लोग आते हैं ना क्विज के इंटरेक्ट खेलते हैं, मस्ती करते हैं, यस ऑफ कोर्स, यस यस ये चला देते हैं आपके लिए। अमित सिंह नगर। सुधांशु गुप्ता से पुष्प की ये मुलाकात जल्द ही समाप्त हो गई। अगली मुलाकात दिल्ली के एक होटल में हुई, जिसमें सुधांशु अपने साथ पेटीएम के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अजय शेखर को भी लेकर पहुंचे। अजय शेखर न सिर्फ पेटीएम के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, बल्कि कंपनी के मालिक विजय शेखर के छोटे भाई भी हैं। पेटीएम की सारी जिम्मेदारी यही संभालते हैं। अजय शेखर से बातचीत में ये साफ हो जाता है कि उनका लगाव एक खास पार्टी और संगठन के साथ है। We are not going to directly use संघ in our campaign anywhere. शिशु मंदिर की पढ़ाई सब कुछ वही है, अच्छा, लेकिन there are certain ways to take it forward. तो बताएं सर क्या कर सकते हैं आपके लिए? तो उसमें मेरे ख्याल से you got my point कि हम लोग कैसे क्यों ऐसा कर रहे हैं, right? So there are, because politically we don't want to fall in any controversy. तो अभी श्रीमद् भागवत गीता प्रचार समिति एक NGO है, वो काम सब वो हिंदुत्व का ही रहेगा, लेकिन हम लोग संगठन को सामने नहीं लाएंगे। संगठन को सामने। मतलब आप बताएं मेरे को, मैं उस संघ से बहुत जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, मतलब मैं अरुण कुमार जी मेरे बड़े अच्छे, मतलब मेरी बहुत अच्छे संबंध है उनसे। मेरे रामलाल जी से? 27 को राम कृष्ण गोपाल जी, हाँ। वो मेरे बड़े क्लोज हैं। अच्छा, मतलब उधर वहीं गए हैं, तो उनसे तो हमारे मतलब काफ़ी। अजय शेखर लगातार अपने संबंधों का जिक्र करके पुष्प को ये बतलाना चाह रहे थे कि उनकी विचारधारा पुष्प के एजेंडे से कितनी मिलती है। मतलब शिवराज जी तो मतलब मेरे को नाम से जानते हैं। राइट, शिव चौबे जी भाई साहब। मैं देखो मुझे नहीं पता संघ वाली साइड, लेकिन पॉलिटिक्स वाली साइड जो SK मिश्रा जी हैं, कल ही उनसे बात हुई है। मतलब ये तो मतलब मेरे तो काम डिफरेंट तरीके पड़ते हैं ना। राइट राइट राइट, मतलब SK मिश्रा जी से ही पड़ते हैं हमारे काम। अच्छा। मतलब और क्या बोलूं, छत्तीसगढ़ में सुमित उपाध्याय जी भाई साहब हैं जो संघ में मैं सेंटर में मिला हुआ हूँ। अरुण यहाँ कुमार पर। जी, अच्छा। प्रफुल्ल केतकर जी जो ऑर्गेनाइजर के एडिटर हैं, उनसे मेरे अच्छे संबंध। नहीं, उनका अलग। मतलब मेरे कभी डिस्कशन में ये बात आई नहीं निकल के जो आप मेरे से बोल रहे हैं। मतलब मेरे हर तरह की डिस्कशन होते हैं। नहीं नहीं, श्रीमद् भागवत गीता प्रचार समिति एक इंटरनेशनल समिति भी है, और उसका संगठन के साथ एक अलग तरीके से इमोशनल कनेक्शन भी है, और उन्हीं का ही मामला भी है। लेकिन वो किस गुप्त व्यवस्था में है, किनके साथ है, वो चीज़ें अभी डिस्कशन में नहीं आनी तो चाहिए। अरुण कुमार जी को भी नहीं बताऊंगी। नहीं, उनसे क्या लेना देना है हमारा। अगर मैं यहाँ बैठा हूँ मतलब नहीं, जब ये इतनी बड़ी डिस्कशन हो रही है कि भैया एक साइड में एक, मतलब मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, मतलब ये बहुत बड़ा डिसीजन है। नहीं, क्योंकि decision जो बहुत- बीजेपी की जीत का कारण है वो RSS है। तो ये तो हरिद्वार हुआ ना। पत्रकार पुष्प शर्मा से बातचीत में अजय शेखर मानते हैं कि उन्होंने उस खास संगठन के लिए कई काम किए हैं, लेकिन इस काम के बारे में यानी हिंदुत्व के एजेंडे के बारे में उनसे कभी बातचीत नहीं हुई। इस बात का उन्हें आश्चर्य भी है कि उन्हें कैसे इस बारे में जानकारी नहीं है। निरंजन अखाड़े के वो हैं, चीफ हैं, निरंजन अखाड़ा समझो, जो 6-7 हज़ार करोड़ का जो उनका वो काबला अखाड़ा, उसके चीफ हैं। मोहन भागवत जी भाई साहब जो है वो हमारे आश्रम में आए थे 4 फरवरी में, अभी लास्ट ईयर। वो नाम से भी जानते हैं, नेट पे भी सब अवेलेबल है नहीं, इन्फॉर्मेशन। वो नहीं कह रहा, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, तो मैंने मेरे डिस्कशन में नहीं आया। हर चीज़ आपके डिस्कशन में नहीं आएगी ना। तो इतना बड़ा काम कर रहे हैं हम, तो आपको ये क्या बताएं हम क्या क्या काम कर रहे होते हैं, कुछ हम भी नहीं बता सकते आपको। राइट, मतलब कुछ ऐसे काम हमसे करवाए संघ ने कि मैं आपको बता नहीं सकता। ठीक है। अजय शेखर पुष्प को ये भी बताते हैं कि संगठन की मैगजीन को वो किस तरह से सपोर्ट करते हैं। साथ ही उन्हें लगातार इस बात का भी मलाल हो रहा है कि आखिर हिंदुत्व के एजेंडे को चलाने के लिए उनसे क्यों नहीं बोला गया। प्रफुल्ल केतकर जी ऑर्गेनाइजेशन जो मैगजीन है ना, हाँ। उसके एडिटर हैं। नाम सुना, मैं भी मुलाकात। अरे मेरी तो उनसे दोस्ती है। मतलब आप अगर 5 एजेंडे को उठाएंगे तो उसमें पेटीएम के ऐड दिखेंगे आपको। आप देखना अभी इस बारे में ना, आपको दिख जाएगा। ओके, वो उनके कहने से करे हमने। तुषार के लेवल पे हम लोगों ने एजेंसी तुषार की यूज़ की है। झंडे बनाने में ऑफिस है उनका, प्रफुल्ल केतकर और उसका 5 एजेंडे का।
तो एक बार मैं उनसे मैं बात कर लूँगा, मतलब मेरे को इसके बारे में पता नहीं है। अगर वो मतलब अगर आरएसएस कहेगा तो मतलब मेरी समझ में तो वो हमसे डायरेक्ट ही कहे थे, इतना घुमाने की बिल्कुल मेरी समझ नहीं आया। अजय शेखर को अभी तक इस बात का विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर उन्हें इस एजेंडे के बारे में कैसे नहीं पता है, इसलिए वो पुष्प से एजेंडे के बारे में कुछ बात नहीं कर रहे और न ही वो पुष्प से कोई वादा कर रहे हैं। वो एक बार अपने स्तर पर पता कर लेने के बाद ही कुछ करने की बात करते हैं। तो मैं वहाँ पर पॉलिटिक्स में, जैसे कि आपकी चिंतामणि जी हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं जो वहाँ के मध्य प्रदेश मोहन यादव जी भाई सबसे वहाँ नहीं, मैं सारे मिनिस्टर जैसे नरेंद्र सिंह तोमर हो गए, आपके शिवराज जी से तो मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब मैं दिखाई देता हूँ, मतलब उनसे वो तो वो मेरे को बाय फेस जानते हैं, बाय नेम जानते हैं, और मैं उनसे क्या बताऊँ। चलो ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट कि मतलब कॉन्फिडेंस थोड़ा, मतलब मेरे कॉन्फिडेंस है, मेरी समझ नहीं आ रहा हमसे क्यों नहीं करे वो लोग। गुरु जी के वीडियोस वगैरह भी उसमें डल जाएंगे, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको दूंगा मटेरियल। वो सब हम कर देंगे अगर मेरे से आरएसएस कहेगा, क्योंकि आरएसएस तो हमारे ब्लड में है। क्या बात है, मतलब आपको क्या बताएं, हमने शाखा अटेंड की हुई है बचपन में, तो आपको फिर मैं पूछूंगा करना है तो फिर उनको बता के करेंगे। उनको तो अपने नंबर होना है, क्या नहीं करना, सीधी सी बात है, तो इतना करना है तो फिर करना है। बातों ही बातों में अजय शेखर ने एक ऐसी बात बता दी जिसे सुनकर पत्रकार पुष्प शर्मा भी हैरान रह गए। ये बात हमारी, आपकी और पेटीएम ऐप का उपयोग कर रहे देश के 20 करोड़ से अधिक लोगों की निजी जिंदगी से ताल्लुक रखती है। तो वहाँ पर जो जेके में बंद हुए थे ना, जो पथराव वाला, तो हमसे पर्सनली पीएम से फोन आया, कहा गया था हमें ना डेटा दे दो, हो सकता है पेटीएम यूज ना करें, समझ लो। पर्सनली पीएम से फोन आया, कहा गया था हमें ना डेटा दे दो, हो सकता है पेटीएम यूज ना करें। अजय शेखर के अनुसार उन्होंने अपने उपभोक्ताओं का डाटा भी बांटा है, यानी कि पेटीएम ऐप का उपयोग करने वाले लाखों लोगों की जानकारी सुरक्षित नहीं है। बातचीत खत्म करते हुए शेखर ने कहा कि वो एक बार इस एजेंडे को सहयोग करेंगे, लेकिन पहले निश्चित नेताओं को इसकी जानकारी देकर, इससे पहले उन्होंने कुछ और खुलासे भी किए। ये तो कैलाश जी है, ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मतलब बहुत अच्छे दोस्त, ने मुझे बड़े काम किए हैं, ठीक है। मेरा दोस्त है बेंगलोर में IPS है, इनके बहुत काम कर रहा हूँ। नहीं, मैंने गुरु जी का नाम लिया, वहाँ पर अगर मोहन भागवत जी आ रहे हैं तो बात छोटी नहीं है, होगी, लेकिन हम मानता हूँ। हाँ, लेकिन जब मैं मोहन भागवत जी के साथ सारे काम कर रहा हूँ, मोहन भागवत जी कह भैया के तुमने ये कर रहे हो, मैंने उनको बता दूँ आपके लिए कर रहा हूँ। अजय शेखर और सुधांशु से पत्रकार पुष्प शर्मा की बातचीत हो चुकी थी। अजय शेखर पुष्प के हिंदुत्व एजेंडे को चलाने के लिए तैयार हैं और वो खुद भी इस विचारधारा से जुड़े हैं, लेकिन वो पहले अपने राजनीतिक आकाओं को खबर देने के बाद ही इस एजेंडे को पेटीएम ऐप के जरिए बढ़ावा देंगे। गोली देना बंद करो।